ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝાની ઉપસ્થિતિમાં વિમોચન. જાણીતા ઉદ્યોગસાહસિક અને શિક્ષણશાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું વિમોચન આજે અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફ, બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સામાજિક કાર્યકર દિયા મિર્ઝા, આર. શેઠ પબ્લિશર્સના ડિરેક્ટર ચિંતન શેઠ, પુસ્તકના લેખિકા અનુરિતા રાઠોડ જાડેજા સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પુસ્તક અમદાવાદના અગ્રણી પ્રકાશન ગૃહ આર. શેઠ એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક ઉદ્યોગસાહસિક અને શિક્ષણશાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના વિચારો અને કાર્ય પદ્ધતિઓ પર એક ઊંડી સમજ પૂરી પાડે છે, જેઓએ શિક્ષણ અને સામાજિક કાર્યની શાળાઓ અને સંસ્થાઓ ચલાવવાના કારણે સંભાવનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવાની કળાને સારી રીતે પકડવા ઉપરાંત માનવ વ્યવહાર અને વ્યવસ્થાપનના સુમેળ સાથેની અદ્ભુત સમજ પ્રાપ્ત કરી છે. है वो है ना आपकी खुद की जो बैरियर है, दैट आपकी वनरेबल साइड है ना, कोई दिखाना नहीं चाहता. इतने साल लग गए मेरे स्टोरी लिखने में, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वनरेबिलिटी इन द स्टोरी. अब जब आपके एंड एवरीबडी हैज दैट, मैंने पहले भी कहा हर एक के लाइफ में है. यू हैव सक्सेस, यू हैव फेलियर, ऑल ऑफ अस हैव इट. टुडे आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट शी इज सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट माय लाइफ. यू थिंक दिस एनी लेस इन हर लाइफ or any woman here? Woman इसलिए मैं कहती हूँ because it's a man's world. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो. She's been around the world. There is a difference between man and women, and I'll tell you, जो हम progressive women हैं, we consider ourselves equal. हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए. That's all. So I just want to say that failure and vulnerability के बारे में लिखा जाना चाहिए. Because बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बोलना पड़ेगा. He says, success is a lousy teacher. Success teaches you not to fail. Yes. But failure, जो lessons आप सीखते हो ना, कभी नहीं भूलते. And those are the things that if you don't tell, others will not listen, will not think it's okay. और मेरे लिए खास करके because I lead youth, मुझे ये दिखाना है उनको that it's not important that you fall. What is important that you get up and run. And how you get up. हाँ, with dignity. दूसरी बात है कि हमेशा dignity किसी चीज में नहीं खोनी चाहिए. Because things will, setbacks होंगे, सक्सेस होंगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, बट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन वो रह जाती है. And that should be really with pride and dignity. I also feel in a world that is constantly forcing people to be aggressive, be loud, and the idea that वैसे हो करने से ही बात आपकी लोग सुनेंगे. In the middle of that, to hear somebody talk about the importance of courage along with dignity and grace, because these are qualities that are, being lost now in the narrative of communication and everything. And it's so important for young people to know that you can be silent and heard. You don't need to speak loudly. You don't need to be aggressive. You don't. जैसे कि मैंने कहा, बहुत सिंपल चैप्टर्स में डिवाइडेड है बुक, और सेक्शंस हैं लाइफ की, जिनकी जो इनकी लर्निंग्स हैं वो जो एक्सेसिबल बनाती हैं बुक को. आई थिंक किसी भी चीज़ से प्रेरणा मिलना वो तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी की स्टोरी से जुड़ जाते हैं. इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बहुत सारी वाक़यात हुई हैं जिसकी वजह से इनकी जर्नी जो है वो डिफाइन हुई है, और उस जर्नी से ही इंस्पिरेशन हमें मिलता है. इनका जो प्रकृति की तरफ के प्रति प्यार है वो
मैं भी मतलब बहुत मानती हूँ प्रकृति में, और मैं जानती हूँ उस प्यार को, लेकिन जिस तरह से वो मतलब वो जो सिंपल फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उसे जो रिमाइंड करती हैं, वो रिमाइंडर्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर पीपल। क्योंकि शायद कोई इनकी किताब उठा ले, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने इतनी सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खोली हुई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या इन्होंने अपने बहुत खुश हूँ अहमदाबाद आकर। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो लेकिन आज मैं एक ख़ास इंसान के लिए आई हूँ। मंजुला पूजा श्रॉफ जी ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, उनके ज़िंदगी के वाक़यात हमारे साथ शेयर किए हैं, और मैं यहाँ पर आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब उनकी किताब पढ़ेंगे और उनसे वो चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल करने के बाद हम सबके साथ शेयर किए। ये किताब के बाद कोई प्लानिंग है इस पे मूवी या कुछ प्रमोट करने की? शी इज़ एक्चुअली, तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये मैम ने लिखी हुई है। उनकी जो आजकल ना लोग पूरी किताब नहीं पढ़ते, एंड आई थिंक द पब्लिशर्स एंड द ऑथर है अंडरस्टैंड दैट। तो उन्होंने क्या किया है, जो सेक्शंस हैं इनकी लाइफ के और जो इंस्पिरेशंस हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सेपरेट करके अंडर डिफरेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं। तो आप किताब का कोई भी पन्ना पढ़ के खोल के पढ़ सकते हो, और ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पढ़ते होते तो ज़्यादा समझ आता है ये वो। So it's a book that you can just pick up and read at any point, anywhere, which is encouraging क्योंकि lots of people don't have the time and the patience anymore to read a full book. So whenever you feel like a shot of inspiration, you just pick up the book and open a page and read it. That's the most interesting thing. तो आपका सवाल क्या था? इसके बाद बायोपिक मूवी भी बन सकती है ना? मूवी नहीं बन सकती, जो ये फॉर्म में है उस फॉर्म में मूवी नहीं बन सकती, लेकिन मैं इनके मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं इनसे करने वाली हूँ, और होपफुली ये मुझे जवाब देंगी और शायद मूवी भी बन सकती है, क्योंकि इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है। उसमें ऐसा कोई इमोशनल पॉइंट जो आपको लगे? आई थिंक यू नो, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं वो सभी के लाइफ में होते हैं, चाहे वो रॉयल्टी से क्यों ना हो। एंड दैट टू मी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द बुक, कि हम सबको लगता है कि ऑफ कोर्स जो जिस परिवार में हम पैदा होते हैं उसमें हमारा कोई से नहीं होता, वो मतलब डेस्टिनी होती है, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट is up to us. So that for me is the most interesting aspect. जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके बारे में मतलब कोई भी जो पब्लिक पर्सनालिटी होती है उनके बारे में उनके काम रिलेटेड हर कोई जानता है, बट जब आप थोड़ा ज़्यादा बात करोगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ऐसी ख्याल हैं, ऐसी बातें हैं विच नोबडी नोज ऑफ। वो जब मुझे पता चला, जैसे इनके साथ कुछ भी बात करो लाइफ के बारे में, फिलॉसफी, थ्योरीज, ट्रैवल, लव फॉर ट्रैवल, साइकिलिंग करती हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, योगा खुद से सीख गई, हाँ, ये सारी चीजें हैं जो नहीं मालूम। जब बच्ची थी छोटी कौन करता है? अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा है, जैसे मैं खुद ही आजकल एक्सरसाइज करने का 1 साल से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही, शायद मैं इनका वो एक पैसेज अगर पढ़ लूँ तो मुझे, हाँ, ऑन कंसिस्टेंसी, तो मुझे लगेगा कि ओके कर लेना चाहिए, किसी ने किया है। तो ऐसे तो आपको, मैं तो कहूँगी 50-100 ने काफ़ी सारे जेम्स मिलेंगे किताब में जो आपको लगेगा। इसीलिए इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू विमेन। Of course, she's a woman. I am the one who's a writer, and the one who conceived it is a woman. The one releasing it and celebrating it today is a woman. But this book की जो आप बातें पढ़ेंगे वो that are almost equally applicable to men. Yeah. All